and thanks for the joining call. Uh, this call is for taking you through the new system which has been introduced for off-roll management, mainly for the 3PL associates who have been deployed through you as a vendor at our DC as well as warehouse locations. Records are being maintained at our end through CMPS, and you people are also generating their Scrum ID using CMPS as a portal. Their Scrum ID gets created, and then whatever the registration required in our system, they are being provided and they are getting that. Now we are migrating. Geo as an organization is migrating from CMPS to Better Place as a new platform. So we all will be required, going forward, will be required to utilize Better Place as a platform in our day-to-day operations. So we have our NHP team, Mr. Pranay, with us in this call. He will take you through the features of Better Place and you as a vendor, what you are supposed to do or required to do for your associate, anything concern for their life cycle management, including F&F. He will just take us through, and you are all required to go through it at any point during this explanation. If you have any query, please feel free to ask us, even so. But please understand the features of Better Place thoroughly. Thank you. Over to Pranay. Hello. Uh, Good afternoon, everyone. Am I audible? Just, Yes, sir. Yes, sir. yes. Okay, so I'll share my screen. So I hope my screen is visible. So the URL for this website is cwms.rir.com. I'll send this across in a mail with all the details and all the manuals also. So just for information, this is Contract Workforce Management System, rir.com, and we have done the activity of getting the contacts person's box, their email ID, contact number, and vendor details also. So the vendor logins are currently in progress creation. So once they are created, we'll share it across. So even the Spocks can get their IDs generated. I mean, they can log into the system. So the first time login has to be done by the email ID. हिंदी हिंदी में करो ठीक है अ, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ शायद इससे सबके लिए बेट कंफर्टेबल रहेगा तो Are you all comfortable in Hindi? हाँ सर। Yes, sir. Yes. Both any सर। language. ठीक है. ठीक है तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ cwms.rir.com ये वेबसाइट का एड्रेस है और इसका मतलब फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम तो लॉगिन के लिए पहले ये वेबसाइट यूआरएल पे जाना होगा जो ईमेल आईडी जो कांटेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी जो शेयर किया है वेंडर ने तो वो उसके ऊपर लॉगिन होगा ये मेरा पर्सनल मेरा लॉगिन है तो सब लोग प्लीज नोट डाउन भी करते जाइए स्टेप्स। वैसे ये प्रेजेंटेशन तो हम भेजेंगे ही आपको इसका, बट आप स्टेप प्लीज नोट डाउन भी करते जाइए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि लिखा हुआ याद रहता है, सुना हुआ याद नहीं रहता। ओके सो ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है फर्स्ट टाइम जनरेशन के लिए फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा इस पे आपका जो भी ईमेल आईडी है वो एंटर करना है और सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आपके जो ऑफिशियल ईमेल जो ईमेल आईडी शेयर किया था उसके ऊपर एक पासवर्ड आएगा
ये आपके ईमेल आईडी पे ये पासवर्ड आएगा, फर्स्ट टाइम पासवर्ड। तो वापस ये लॉगिन पेज पे जाएगा, का ईमेल आईडी एंटर करना है। जो ईमेल में जो पासवर्ड आया था वो, एंड लॉगिन। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। अभी आपको पासवर्ड चेंज करने बोलेगा, तो जो ईमेल में आया हुआ है वो करंट पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और जो आपको पासवर्ड सेट करना है तो वो आप पासवर्ड इस पे एंटर कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड रीसेट हो गया, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ये आपको हर मतलब ये पासवर्ड पे आप एवरी टाइम लॉगिन कर सकते हो। ये आपका मेन पेज ओपन होगा इस पे। तो ये इसका मेन स्क्रीन है। ऑलरेडी इंटर टाइप कर लो। इंडिया में इंडिया में कर रहा है, इंडिया में थोड़ा जो बात है देखिए, बोलो ना इंडिया में लाइक कर तो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लॉगिन पेज आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑल वर्कमैन में आपने जितने एसोसिएट्स को ऑनबोर्ड किया है वो आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगे। करंटली आपके जो भी एसोसिएट्स है सिस्टम में, जो सीएमपीएस में थे, जिनको आपने ऑनबोर्ड किया था, तो वो आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगे। उनका डिटेल्स यहाँ पे विजिबल रहेगा, नेम, उनका रोल, कौन से लोकेशन पे है वो लोग, उनका ज्वाइनिंग डेट और उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। और आपको कोई नया ऑनबोर्डिंग करना होगा तो भी तो यहाँ से आपको ऑनबोर्ड करना है। ऐड वर्कमैन करके फीचर है, यहाँ पे आपको ऐड वर्कमैन पे क्लिक करना है। तो इसका मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये आप आधार नंबर से, ये भले ही डिटेल सब लेता है, बट आपको आधार नंबर से इसको ऑनबोर्ड करना है। तो ऑनबोर्डिंग के टाइम आपको आधार का एम्प्लॉय का आधार कार्ड डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालता हूँ, 1 मिनट, मैं सिर्फ दूसरे साइट पे जाके ये करता हूँ। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ये ऐड वर्कमैन वाला फीचर है नया। जब भी आप ऑनबोर्ड करेंगे तो ये ऐड वर्कमैन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय जिसको आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसका आधार कार्ड यहाँ पे एंटर करना है। ये आधार कार्ड आप इंश्योर कीजिए कि ये सही हो, क्योंकि ये यही सिस्टम में आगे आधार कार्ड जाता है और इसको एडिट करने नहीं देता है। तो ये आप एंटर करते टाइम करेक्ट एंटर कीजिए। और ये जो अगर आपका ये ऑलरेडी इधर इसमें आपने जो आधार कार्ड एंटर किया, अगर वो ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है तो यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा कि ये ऑलरेडी सिस्टम में है आधार कार्ड। ये एक एरर आ सकता है आपको, तो वो आपको फिर टीम के साथ चेक करना पड़ेगा कि ये आधार कार्ड ऑलरेडी किसके लिए यूज़ किया गया है, और वो एसोसिएट को वो वाले पुराने पीपीजीओ को सेपरेट करने के टर्मिनेट करने के बाद ही आप ये इसको वापस ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ये आधार कार्ड एंटर किया, नेक्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया या कोई डाउट्स है यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है।
Yes, sir. थैंक यू। तो ये इसके बाद ये स्क्रीन आपका ओपन होगा। इसमें आपने जो आधार कार्ड एंटर किया है वो यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये आइडियली एज पर आधार ही डालिए ताकि ये आगे जाके वैलिडेशन में प्रॉब्लम ना हो। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें 18 ईयर्स का मैंडेट है तो उससे कम वाले को ऑनबोर्ड नहीं होगा इसमें, तो आप वो वाला ध्यान दीजिए। मोबाइल नंबर, ये कैंडिडेट आईडी अवेलेबल नहीं है, इसको आप एंटर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये आपको एंटर करने नहीं देगा। नेशनलिटी इंडियन, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर्स जो भी है। यहाँ पे आपको नेम एज पर आधार, जो उसके आधार कार्ड पे नेम मेंशन्ड है एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में नाम मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे एक उसका फोटोग्राफ, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना एक ये नया फीचर है, ये मैंडेटरी है, तो ये एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कीजिए अभी से। तो ये कैप्चर पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। सर कैंडिडेट आईडी क्या है सर? कैंडिडेट आईडी ये सिस्टम का है, तो आपको ये फ्रंट एंड पे आपको एंटर करने का जरूरत नहीं है, ये एंटर करने देगा भी नहीं आपको। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए फॉर्म देगा, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में से आई एक्सेप्ट। और ये इतना सेव करने के बाद ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। वर्कमैन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके आएगा और आपको प्रोफाइल यहाँ पे ऊपर आपको परसेंटेज दिखेगा कि कितना प्रोफाइल कंप्लीशन है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर वर्कमैन टाइप और वर्कमैन स्टेटस, ये आपको चेंज करने नहीं देगा। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट वेंडर, तो यहाँ पे आपका नाम ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए, जो भी रहेगा वो आपका वेंडर कोड और आपका वर्क ऑर्डर, जो वर्क ऑर्डर आपका सिस्टम में करंटली वैलिड है जियो के साथ, तो वो वर्क ऑर्डर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैलिड वर्क ऑर्डर भी सिलेक्ट करना है, एक्सपायर्ड वाला, क्योंकि वर्क ऑर्डर सिलेक्ट करते ही उसका वैलिडिटी डेट आएगा आपको। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये वैलिड वाला ही वर्क ऑर्डर हो। अगर यहाँ पे वैलिड नहीं है, वैलिड वर्क ऑर्डर नहीं रहेगा सिस्टम में, तो आपको ऑनबोर्ड करने देगा नहीं, तो या फिर ये ऑनबोर्ड करते ही ये टर्मिनेट हो जाएगा एसोसिएट। तो ये आपको वैलिड वर्क ऑर्डर देखना है, अगर है नहीं है तो वही सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको NHQ HR पे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनको बताना पड़ेगा कि आपका वर्क ऑर्डर फेच नहीं हो रहा है, तो वो फेच होने के बाद वो फेच करके देंगे, उसके बाद आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर नंबर, लेबर लाइसेंस अगर ये अवेलेबल है तो ये आपका, और आपको इसका ज्वाइनिंग डेट डालना है। ज्वाइनिंग डेट में आपको जिस दिन वो ज्वाइन होगा उस दिन का ही डेट डालना है। उस दिन उसका PPGO, मतलब उस दिन से उसका PPGO एक्टिवेट होगा। इसका रीजन ऐसा है कि अभी से मतलब इनका एसोसिएट्स का PPGO जनरेट होगा, उसके बाद ही उसका FR में रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही उसका अटेंडेंस होगा। तो अगर कोई एसोसिएट आज साइट पे जाता है और उसका PPGO 2 दिन बाद बनता है, तो उसको पहले 2 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अटेंडेंस मतलब उसका PPGO ही एक्टिव नहीं रहेगा सिस्टम में। तो वो दिन का उसका ना ही अटेंडेंस कंसिडर होगा और ना ही उसका वो दिन का सैलरी भी प्रोसेस हो पाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जिस दिन उसका ऑनबोर्डिंग है उसी दिन का आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका डाल दीजिए। यहाँ पे आपका एजेंसी का जो वर्कमैन आईडी है, मतलब जो आप एम्प्लॉय कोड आपके एंड पे देते हो, तो वो एम्प्लॉय कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। रिसोर्स टाइप फुल टाइम, PRM आईडी भी सिस्टम का है, तो ये आपको एंटर करने का जरूरत नहीं। डेजिग्नेशन और डोमेन आईडी भी सिस्टम का है, तो ये 2 फील्ड भी आपको एंटर करने का जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन है, तो लोकेशन में
इसका आपको मास्टर आ जाएगा और ये सर्च सर का डेजिग्नेशन ऑप्शन। कैसे पता चलेगा सर? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये डेजिग्नेशन और डोमेन आईडी ये सिस्टम का है, ये आपको एंटर नहीं करना फ्रंट एंड से। आगे है वो। वो रोल हाँ रोल जो है वो आगे है। ओके तो रोल लोकेशन ठीक है, तो लोकेशन वाला आपका जो साइट है तो वो साइट का लोकेशन का आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे। ये CMPS वाला स्ट्रक्चर है, बट कोड वाइज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वो कोड सर्च मारेंगे आप तो वो कोड आपको मिल जाएगा। एक ये सिलेक्शन वाला मेथड है। ये जो साइट कोड आपको दिख रहा है तो ये वेंडर वाइज जो साइट कोड है, मतलब ये साइट पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो ये जो साइट कोड है इसको बिल्ड आईडी बोलते हैं। तो ये बिल्ड आईडी आपको आपके जो साइट्स पे आपका डिप्लॉयमेंट है तो वो साइट्स का आपको बिल्ड आईडी मिल जाएगा, नेम ऑफ साइट और उसका बिल्ड आईडी। तो आप जो साइट पे उसको ऑनबोर्ड कर रहे हो वही साइट का आपको बिल्ड आईडी डालना है, क्योंकि आपका वो पोजीशन वो साइट पे बना रहेगा। तो अगर ये बिल्ड आईडी गलत हो जाएगा तो वापस आपको ऑनबोर्ड होने के बाद वो एसोसिएट डीएक्टिवेट होने का चांसेस है। तो ये बिल्ड आईडी आप करेक्ट कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये इसका जो मैपिंग है वेंडर वाइज जो मतलब जो वेंडर जो साइट्स पे आप डिप्लॉयमेंट है तो वो जो मैपिंग है वो आपको एक्सेल में भेज दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप वो कंसिडर कर सकते हो साइट वाइज बिल्ड आईडी। ठीक है, ये सिलेक्शन वाला है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में भी डायरेक्ट सर्च का भी ऑप्शन है, तो वो डायरेक्ट सर्च भी करके वो लास्ट वाला जो था D0012 तो वो डायरेक्ट सर्च करके वो डायरेक्ट लोकेशन यहाँ पे एंटर होते हैं। सेम ये जो करंटली आप क्या कर रहे हो ना कि जब भी आप लोकेशन सिलेक्ट करते हो और ड्रॉप डाउन में आपको मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि आपके अंदर जितने भी सारे लोकेशन है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो करेंगे। लेकिन आप अगर गलत आईडी वहाँ पे डालते हो लोकेशन कोड, तो उस बंदे का जो एम्प्लॉय है ना उसका पेरोल वो लोकेशन पे रन होगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्ट लोकेशन डाल रहे हो। इसके पहले आप कुछ भी डाल देते अभी ऐसा नहीं होगा। इसके ये प्रोसेस जो है ना, इसके थ्रू ही हम लोग सैलरी प्रोसेस करने वाले हैं। तो इंश्योर करो आप कि आप जो लोकेशन डाल रहे हो वो करेक्ट है। अगर कुछ डाउट है जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो हमको कॉल कीजिए, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, तो वो प्रॉपर डालना है आपको। उसका डेजिग्नेशन वो भी अभी आगे बताएंगे, वो सारा डिटेल्स मैंडेटरी है और वो आप एक्यूरेट वही डेटा अपलोड करना है। लोकेशन वहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो नहीं कर रहे तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज, बट रॉन्ग डिटेल्स अपडेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका डेजिग्नेशन मतलब जो जॉब रोल पे इसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो ये भी सिलेक्शन वाइज है। ये रोल्स अवेलेबल रहेंगे आपको सिस्टम में। ये भी आप जो रोल के अगेंस्ट आपका डिप्लॉयमेंट है वो रोल्स आपको एक्सेल में भेज देंगे, तो आपको वही रोल सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिस्टम में वही रोल के अगेंस्ट उसका पोजीशन अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपने गलत अलग रोल सिलेक्ट किया और उसके अगेंस्ट पोजीशन अवेलेबल नहीं रहा तो फिर वापस में ऑनबोर्ड करने आपको सिस्टम में ऑनबोर्ड करने देगा नहीं। तो ये एक रोल आपको सिलेक्ट करना है। ये और यहाँ पे आपको कस्टम टैग में भी ये रोल के अगेंस्ट जो मैपिंग है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है सिस्टम मतलब लोकेशन, रोल और जो ये कस्टम टैग है, तो इसका मैपिंग आपको मिल जाएगा। वो रोल के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग आप एंटर कीजिए। आपके लिए जो वैलिड है वही एंटर कीजिए, दूसरा आप मत एंटर कीजिए। उसके बाद वो साइट पे जो मैनेजर है तो वो रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम आपको इसमें लिस्ट में मिल जाएगा। हाँ, तो वो साइट पे जो साइट आपने सिलेक्ट किया है उस साइट के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है वो साइट का उसका ही नाम आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिलेगा। तो वो ड्रॉप डाउन आप एंटर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनबोर्डर्स ये वाला भी फील्ड आपको एंटर नहीं करना है, ऑनबोर्डर ईमेल आईडी ये नहीं। और ये इतना सिलेक्ट करने के बाद इतना एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। एक मेजर इम्पोर्टेंट आप ध्यान दीजिए कि ये रिपोर्टिंग मैनेजर ये पेज से आप पीछे मत जाइए,
क्योंकि अगर ये आप यहाँ से पीछे चले गए तो फिर ये ऑनबोर्डिंग आपको वापस विजिबिलिटी का इशू हो जाएगा। तो आपको लोकेशन, रोल और ये कस्टम टैग और रिपोर्टिंग मैनेजर, ये चार डिटेल्स एंटर करके या सेव करके ही बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर मत निकलिए। यहाँ तक क्लियर है आपको कि कोई डाउट्स है यहाँ पे? नो सर। नो सर, नो सर। इंडेड हमें उसकी ठीक है, तो इसके बाद ये सब जो एडिशनल डिटेल्स है, ये जो आप एसोसिएट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनका डिटेल्स है। तो ये एड्रेस एज पर आधार जो अवेलेबल एड्रेस है वो, उसका पिन कोड, ठीक है। इसका परमानेंट एड्रेस मैंडेटरी है, बाकी आप करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हो। अगर कुछ दूसरा अवेलेबल है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये एड्रेस एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स, मीटिंग में कॉल करता हूँ।
ये एड्रेस डिटेल्स के बाद आधार डिटेल्स, इसका ऑलरेडी एंटर्ड है, इसका डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड एक मैंडेटरी है। तो पैन कार्ड यहाँ पे आपको पैन कार्ड डिटेल्स, नेम और उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड का ऑप्शन आ गया सिस्टम में, तो उसका पैन कार्ड के कॉपी का फोटो आपको अपलोड करना है या पीडीएफ अपलोड करना है। ठीक है, बाकी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है। अगर आपको आपके पास अवेलेबल है उसका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी तो आप उसका ये एंटर कर सकते हैं, बट एक पैन आपको मैंडेटरी अपलोड करना है। आधार कार्ड का अपलोड ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको आधार कार्ड नहीं अपलोड करना है। पैन मैंडेटरी सर। यस, पैन मैंडेटरी है। पैन और आधार दोनों मैंडेटरी। उधर स्टार नहीं दिया सर। हेलो, मैंडेटरी स्टार नहीं दिया सर उधर। बट पैन नहीं होता है, आप बोल रहे हो? हेलो, सबको पैन नहीं रहेगा सर, इसलिए। नहीं, बट वो पीएफ करने के लिए तो उसका पैन बनना कंपलसरी है ना। पीएफ उसका यूएन बनने के लिए तो पैन नंबर पे आधार सर, आधार सर यूएन नंबर जनरेट करने के लिए पान मैंडेटरी नहीं होता, आधार कार्ड होता है। और हाँ, पीएफ में सर पैन कार्ड नंबर तब डिटेल मैंडेटरी होती है जब उसका पीएफ 50,000 से ज्यादा और सर्विस उसकी लेस देन 5 इयर्स हो। ओके। और सर हमारे पैन जरूर होते हैं। और सर हमारे मैन पावर एजेंसी में वो लेबर्स होते हैं मोस्टली, तो आई डोंट थिंक एवरीबॉडी इज हैविंग पान। तो एक कोई तो आईडी प्रूफ तो उनके पास रहेगा ना, वोटर आईडी तो होना चाहिए एक कोई तो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ तो, क्योंकि उनका फोटो आईडी प्रूफ एक कोई तो सिस्टम में हमारे हमको चाहिए। तो उसके लिए तो सर पैन कार्ड के बदले हम आधार कार्ड या पैन कार्ड हम भी मेंशन। हेलो, नहीं, प्लीज वापस बोलिए ना, मेरे को समझा नहीं, सॉरी। आधार कार्ड सर रिक्वायर्ड रहता है, पैन कार्ड आई डोंट थिंक इट्स मैंडेटरी अनलेस ही क्रॉसेस 15,000 मार्क। हाँ, वो ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि आधार स्टोर करने का परमिशंस नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग आधार कार्ड नहीं ले सकते। तो एक कोई तो फोटो आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड है। तो आइदर आप पैन कार्ड अपलोड कीजिए या फिर वोटर आईडी अपलोड कीजिए जो अवेलेबल है, बट फोटो आईडी प्रूफ तो एक होना चाहिए ना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है। तो आप मतलब आप एचआर के साथ एक बार बात कर सकते हैं कि आपके एंड से आप कौन सा दे पाएंगे सबके लिए, और वो अपलोड कर सकते हैं, बट एक तो मैंडेटरी अपलोड करना ही पड़ेगा। इनमें से कोई एक ही अपलोड करेंगे। फोटो आईडी प्रूफ एक कोई तो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। कोई इसके ऊपर कोई डाउट्स है आपको या कोई प्रॉब्लम्स जो आपको लग रहा है इसमें? हेलो, ओके, ठीक है। ये सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे उसका बैंक डिटेल्स जिस पे आप सैलरी प्रोसेस करोगे उसका, इस पे ड्रॉप डाउन में आपको बैंक्स अवेलेबल रहेगा। अगर आपको वो बैंक नहीं मिल रहा है तो आप एचआर के साथ कनेक्ट करके वो रेस कर सकते हैं, वो आपको वो बैंक डिटेल्स एंटर करके दे देंगे। शो कर रही है वो, ठीक है। जैसे ग्रीन ऊपर रहेगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, तो ये यहाँ तक डिटेल्स आप जैसे जैसे भरते जाओगे तो आपको ये प्रोफाइल कंप्लीटेड वाला राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको दिखेगा। तो उसके बेसिस पे आपको समझेगा कि कितना पेंडिंग है। अगर कुछ पेंडेंसी है तो यहाँ पे आपको वो विजिबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस का है। तो इसमें लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कंपलसरी है। वो लैंग्वेज मतलब एक मदर टंग को एंटर करना कंपलसरी है। बाकी आप कोई दूसरा लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड न्यू लैंग्वेज करके आपको सिलेक्ट करना है और वो लैंग्वेज
आप स्पीक, राइट, रीड जो भी है एसोसिएट का वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको एंटर करना मैंडेटरी है, और वो लैंग्वेज उसका मदर टंग सिलेक्ट करना मैंडेटरी। ठीक है, ये सेव एंड नेक्स्ट। अदर डिटेल्स में आपका रिलीजन एंटर करना है, रिलीजन एंटर मैंडेटरी है। कैटेगरी का ऑप्शन है, अगर आपके पास उसका कैटेगरी अवेलेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो आप ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्लायंस का डिटेल्स है। तो इसमें पीएफ, अगर वो फ्रेशर है उसका पीएफ अवेलेबल नहीं है तो आप इस फ्रेशर पे यस क्लिक क्लिक करेंगे तो ये वाला नॉन मैंडेटरी हो जाएगा। पीएफ नंबर 12 people. again I'm login कर दीजिए। पकड़ के रखा है वो। आप लॉगिन कीजिए देन भी। ठीक है, हाँ हाँ हे फक्त स्क्रीन लॉगिन करा इसमें जाने दो। Once you enter, then ठीक है। You will know. इस पे आपको अगर वो उसका यूएन नंबर अवेलेबल है तो इस प्रेशर नो करके आपको यूएन डिटेल्स एंटर करना है। ईएसआईसी अगर उस पर एप्लीकेबल है तो यस, और अगर नो तो वर्कमैन कंपेंसेशन पे वर्कमैन पॉलिसी आपका एंटर करना पड़ेगा। इसका यहाँ पे नीचे वर्क स्किल जो भी इसका है स्किल लेवल, इसका जो अप्रूव्ड सीटीसी है, जो मैनेजर के साथ जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सीटीसी उसको देना है सीटीसी, और वो सीटीसी के बेसिस पे जो ग्रॉस आपको कंप्यूट करके मिला है फ्रॉम द एचआर, तो ये दो वैल्यूज आपको एंटर करना है। ये दो वैल्यू मैनेजर अप्रूवल के लिए जाएगा, तो जो अप्रूव्ड है वही एंटर कीजिए। अगर वो इसमें अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो वो बेसिस पे रिजेक्शन का चांसेस हो सकता है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपने जो मंथली सीटीसी अप्रूव हुआ है वही मंथली सीटीसी, और उसके बेसिस पे जो मंथली ग्रॉस आपका एचआर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया तो वही आप एंटर कीजिए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। इस पे आपको मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको एंटर करना है और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। रिलेशनशिप यहाँ पे एक फादर और एक मदर का डेटा मैंडेटरी है अभी के लिए, ये बाद में मैंडेटरी निकल जाएगा। ठीक है, आप मेरे को 2 मिनट लीजिए, आई विल जस्ट कम बैक, जस्ट आप 2 मिनट के लिए रुकिए। Please. हेलो, यहाँ तक कुछ डाउट्स है आपको? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।
ये रेफरेंस नेक्स्ट इसका रेफरेंस वाला पेज है, इसमें भी एक रेफरेंस कंपलसरी है, तो आप ये रेफरेंस दे सकते हो और एक दूसरा रेफरेंस आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी रख सकते हैं, और उनका नेम और फोन नंबर मैंडेटरी है यहाँ पे। एजुकेशन डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको उसका एजुकेशन मिल जाएगा, वो एजुकेशन डिटेल्स जो भी उसका एजुकेशन डिटेल है अवेलेबल आपके पास, रिकॉर्ड उसका वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस बेस्ड रोल है तो उसमें आप एक्सपीरियंस भी उसका कितना है वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये इसका एक्सेस डिटेल्स है, तो आपको सिर्फ आईडी कार्ड क्रिएशन रिमार्क्स में सिर्फ न्यू ज्वाइन ही सिलेक्ट करना है, बाकी सब डिटेल्स जैसा है आप वैसे ही रख दीजिए। इस पे सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट ये इसका हेल्थ डिटेल्स, तो वेट, हाइट और ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर डिफरेंटली एबल रहेगा तो यस, और उनका आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा यहाँ पे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी स्टेटस एंड परसेंटेज। अगर डिसेबल्ड नहीं है तो नो, और वैक्सीनेशन स्टेटस फुल्ली पार्शियली वैक्सीनेटेड, अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आपको उसका ऑप्शन देगा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पीडीएफ अपलोड करने, ठीक है। ठीक है, ये सेव करने के बाद आपको प्रोफाइल कंप्लीटेड 100% दिखेगा, और ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे इसका प्रोफाइल अवेलेबल रहेगा, इसका स्टेटस रहेगा प्री वेरीफाइड करके। इसके बाद ये मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूवल के बेसिस पे इसका अगर ये पीपी जो अप्रूव हो गया तो ये एक्टिव हो जाएगा सिस्टम में, और उस बेसिस पे उसका अटेंडेंस मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा। तो ऑनबोर्डिंग के लिए ये स्टेप्स है जो आपको अभी से बेटर प्लेस के प्लेटफॉर्म पे करना है, ठीक है। कोई डाउट है अभी? Is there any option for bulk upload, sir? नहीं, बल्क का नहीं है, जैसे सीएम केस में आप एंटर कर रहे थे सेम फंक्शन है यहाँ पे, आपको वैसे ही करना है, सिंगल एम्प्लॉय का ही आईडी क्रिएट करना है। यस सर एक डाउट था यहाँ पे स्पॉक का आप जो लॉगिन करोगे ना, वेंडर का लॉगिन, जो स्पॉक का वेंडर का लॉगिन जो है, तो जो स्पॉक की डिटेल हम लोग को दी गई है उसी के आईडी पे वो बनेगा। हो सकता है कि आपकी 3-4 स्पॉक हो, लेकिन यूजर आईडी एक ही रहेगा जो कि 3-4 स्पॉक यूज करेंगे, ठीक है। और एडिशनल लॉगिन आपको मिलेगा नहीं। ओके, थैंक यू। इनकेस आपको दोबारा डाउट है, दोबारा गो थ्रू करना है तो दिखा सकते हैं अगर कोई इशू है, मतलब इफ यू आर ऑल क्लियर। सर एक क्वेरी थी,
हाँ सर जैसे अगर कोई बंदा 1 फरवरी को ज्वाइन करने वाला है, ठीक है सर, तो अभी इसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर डेट पे पीएफ नंबर या ईएसआईसी नंबर हम नहीं ले सकते। सपोज जैसे 31 जनवरी को हमें वेयर हाउस मैनेजर या हमारे मतलब वहाँ जो बंदा है वो बताता है कि कल 2 बंदे हमें ज्वाइन करवाने हैं। तो सर क्या होता है कि हम 31 तारीख को उसका पीएफ और ईएसआईसी नंबर जनरेट नहीं कर सकते फ्यूचर डेट पे। और जैसे हमें वेयर हाउस वाले बोल नहीं, न्यू हाँ सर, ज्वाइनर के लिए तो न्यू ज्वाइनर के लिए वो डिटेल भाई भरना ही नहीं है ना आपको, अगर वो क्योंकि वो फ्रेशर रहेगा आपके लिए, तो उसके लिए डिटेल्स होती ही नहीं है। हाँ तो सर मतलब पीएफ ईएसआईसी इसमें मैंडेटरी नहीं है डालना। नहीं। अगर आप फ्रेशर सिलेक्ट करोगे तो पीएफ वाला नॉन मैंडेटरी हो जाएगा, बट आपको फिर वो 1 महीने के अंदर उसका पीएफ डिटेल्स आपको सिस्टम में एंटर करना है। हाँ सर, तो एडिट का ऑप्शन है हमारे पास कि फ्यूचर में हाँ, अपडेट करना हो तो। यस ओके सर, ओके। हेलो। सर एक क्वेरी, जो फोटो अपलोड कर रहा है फोटो में कुछ ऑप्शंस हैं कि जेपीजे फॉर्मेट उसमें फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो इसका इतना केबी से कम कंप्रेस करना, ऐसे कुछ उसमें है? देखिए वहाँ पे दो, एक तो अपलोड का ऑप्शन है, तो दूसरा आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। तो आपको बेटर है कि आपके सामने अगर बंदा रहेगा तो फोटो क्लिक करो और वही अपलोड कर दो। तो दो हेलो ऑप्शन सर। दिए वहाँ पे। हाँ, तो आप कुछ दो में से एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और फोटो आप नॉर्मल ले लो, आप नॉर्मल मोबाइल से फोटो हेलो। खींच के वो अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ये आ रही है सर। तो वो आपको करना है। और आप इंश्योर करो कि ये जिस दिन हेलो। ये एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है या फिर कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है उसी दिन उसका स्क्रम आईडी बनाए। अगर आप नेक्स्ट डे क्रिएट करते हो तो उसकी सैलरी नेक्स्ट डे से होगी जिस दिन आप तो आईडी क्रिएट करते हो। तो बैक डेटेड कोई ऑनबोर्डिंग नहीं होगी और एंट्री भी उसी बंदे को मिलेगी प्रेमाइसेस के अंदर, इसका स्क्रम आईडी बना दिया जाएगा वहाँ पे। ये तो पॉइंट प्लीज आप नोट कीजिए जो अभी रमेश ने बोला है। कोई भी अभी पहले जैसे होता था, बैक डेट पे जो स्क्रम आईडी क्रिएट होता था, गोइंग फॉरवर्ड होगा नहीं। इसमें उसी दिन उसको ये भी स्क्रम आईडी जनरेट होगा एंड सेम डे उसको ज्वाइन भी करना है, एफआर में रजिस्ट्रेशन भी करना है, तभी उसकी अटेंडेंस लगेगी और तभी उसकी सैलरी प्रोसेस होगी। और सेकेंड है कि ये पोजीशन वन टाइम क्रिएट किए गए सिस्टम में, तो आपके पास लॉगिन है, आप जितने देख सकते हो कि आपने कितने बंदे लाइव है। और जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी आप रिप्लेसमेंट ले रहे हो, उसको अगर आप सिस्टम में टर्मिनेट नहीं करोगे तो वो पोजीशन ओपन नहीं होगी, यानी आप कुछ भी हायरिंग नहीं करोगे वहाँ पे। तो इंश्योर करना है आपको कि जो छोड़ के चला गया उसको टर्मिनेशन करना है रियल टाइम पे, उसके बाद ही नए बंदे की ऑनबोर्डिंग होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको बल्क में ऑप्शन मिलता था, आप 3-4 जो भी आप क्रिएट करते थे, अभी ऐसा नहीं होगा। तो सेपरेशन फर्स्ट, जो छोड़ के जा रहा है उसके बाद वो पोजीशन ओपन होगी तो आपको करना है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया मैंने। देखो स्क्रीन पे शेयर किया गया है। अगर उसका पोजीशन अवेलेबल नहीं रहेगा तो प्राइमरी डिटेल्स भरते ही वो टर्मिनेट हो जाएगा और नीचे आपको कमेंट भी आएगा कि पोजीशन अनअवेलेबल। तो आपको वो इंश्योर करना है कि अभी के लिए जो डेटा हमारे पास है, जिसका जनवरी में हम लोग पेरोल रन कर रहे हैं, वो सबका डेटा यहाँ पे है और उसका ही रिप्लेसमेंट होगा। अगर एडिशनल कुछ पोजीशन रहेगी तो हम लोग बिजनेस से ले लेंगे रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर वो पोजीशन क्रिएट करेंगे। बट अभी के लिए जितना पोजीशन है वही है, और उसको कोई छोड़ के जा रहा है तो फिर आपको वो वो उसका सेपरेशन करना जरूरी है। अगर आपके पास ये होने के बाद भी कोई आ जाए तो हमको आपको डिटेल्स भेजनी है मेल पे, तो हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे, लेकिन करंट डेट में आपके पास पोजीशन नहीं है वहाँ पे। हेलो। रमेश सर। बताइए। हाँ बोलिए। हेलो, आपको आवाज आई क्या? रमेश ने बोला हेलो। हेलो सर लॉगिन प्रोसेस वापस से समझाइए ना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। लॉगिन क्रेडेंशियल जो है, वो जो डेटा मैंने आपसे ले लिया है स्पॉक का, उसके मेल आईडी पे वो लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग सेंड करेंगे, वही आपको यूज करना है। और पाथ यूज करना है CWMS डैश कौन सा है, जो पाथ है वो भी आपको मेल पे चला CWMS.RL.com ये है। और लॉगिन क्रेडेंशियल आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने और ईमेल दिया है उसके ऊपर चला जाएगा।
वही आपको यूज करना है। वन टाइम एक्टिविटी है आपको, कि जो गया है आपको लॉगिन क्रेडेंशियल, तो पासवर्ड रिसेट करनी है और आपको जो चाहिए पासवर्ड आप उसको सेट कर सकते हो। और जो जितने भी सारे आपके लॉग है ना, उनको आप लॉगिन क्रेडेंशियल दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो आईडी बनाएंगे। आपको मेल के थ्रू हम लोग सभी जितने भी ओके सर। वेंडर्स है सबको डेटा भेज रहे हैं, क्या लोकेशन रहेगा और वो लोकेशन के अंदर क्या डेजिग्नेशन होनी चाहिए बिजनेस की, आपको क्या सिलेक्ट करना है, बहुत वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर लोकेशन गलत सिलेक्ट करते हो तो उस बंदे का उस एम्प्लॉय का पेरोल उस लोकेशन पे चला जाएगा। सेकंड, अगर आप डेजिग्नेशन भी गलत अपडेट करते हो तो आपको वहाँ पे पोजीशन नहीं दिखेगी। तो आपको करना वही है जो दिया गया है, कुछ भी आप सिलेक्ट नहीं करोगे। जो छोड़ के चला गया उसी का रिप्लेसमेंट रहेगा। अगर नई पोजीशन आपके पास आती है तो उसका इंटीमेशन आप हमें हमें दे देंगे, फिर हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे उसका। पेरोल भी हम ही आपको रन करके दे रहे हैं, आपको पेरोल भी नहीं करना है। जो डेटा आप अपलोड करोगे उसको आप प्रॉपर अपडेट कीजिए, अदरवाइज बिलिंग के लिए आपके लिए इशू हो जाएगा। हम लोग पेरोल रन करके दे देंगे आपको कि ये पेरोल है, इन लोगों का ये सैलरी है, बट बिलिंग के लिए आपको इशू हो जाएगा वहां पे। तो डेटा जो भी आप अपलोड कर रहे हो प्रॉपर डेटा अपडेट होना चाहिए। खास करके जहाँ पे हमने लोकेशन दिया है, मैनेजर डिटेल्स दी है, वो वाला, और पोजीशन क्या क्या रोल पे हम लोग उसको हायर कर रहे हैं, सैलरी मेंशन करते हैं वो भी किया। और सैलरी जो आपको अप्रूव करके दी गई है वही सैलरी वहां पे एंटर करनी है। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कमलेश बोलतोय। बोला बोलिए। माझा एक डाऊट होता की समजा आता हे जे लिंक दिलेली आहे किंवा पोर्टल आहे कमलेश हिंदी में CWMS। बात कीजिए सो दैट सभी को समझ में आएगा। ओके ओके सर, सॉरी। अभी जो अपना ये CMS का जो लिंक है, CMS CWMS का, ये जो पोर्टल पे है ये रिलायंस के नेटवर्क में रहेगा तो ही चलेगा, या हमारे वेंडर के इसमें वेंडर प्रोमिस ऑनलाइन में भी कहीं भी? चलेगा, वेंडर प्रोमिस में भी हाँ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके सिस्टम से लॉगिन कर सकते हो उसको। ओके सर, ओके ओके ओके। हेलो सर। सर जो हाँ एम्प्लॉय जब बताइए। एग्जिट होगा तो उसका एग्जिट का कैसे करे, एग्जिट का डेट कहाँ से डाला, थोड़ा दिखाएंगे। एग्जिट का जो ऑप्शन है ना वो मैनेजर के अच्छा पास है, वो वेंडर के लॉगिन पे नहीं है। ओके। लेकिन आपको बताना है कि बंदे ने छोड़ा, या फिर मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है आपको कि ये छोड़ा छोड़ा है सर, इसका ये लास्ट वर्किंग डे है, आप इसको टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि हमको इसी पोजीशन पे एक नया बंदा हायर करना है। जब तक वो पोजीशन वैकेंट नहीं होगी आप उसको ऑनबोर्डिंग नहीं करोगे नए बंदे को। तो इंश्योर करना है आपको कि टर्मिनेशन ये जो सेपरेशन है वो रियल टाइम पे होना चाहिए। करंट सिचुएशन में बहुत सारे पता है आपको कि कितने सारे बंदे छोड़ के चले गए, लेकिन सिस्टम में ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी ने उसको ऑनबोर्डिंग किया नहीं है या सेपरेट किया नहीं है। लेकिन अभी नहीं, गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं होगा, टर्मिनेशन होने के बाद ही नया बंदा हायर होगा। और सर और एक बात है कि मैं एक ही आईडी से दोनों मशीन से लॉगिन कर सकता हूँ या एक ही मशीन से एक ही लॉगिन हो सकता है? एक ही मशीन से एक ही लॉगिन, नहीं नहीं दूसरे सॉरी से सॉरी, कर सकते हो ना। हाँ दूसरे मतलब मशीन पे मेरा मतलब देखो, है कि दो बंदे कैसे अगर होगा एक लॉगिन साथ काम क्रेडेंशियल करे में, एक आईडी से लॉगिन होगा क्या? एक ही नहीं सिस्टम नहीं, पे नहीं दोनों करेंगे अलग अलग आप, सिस्टम सिस्टम होगा। आपको अलग अलग रहेगा। अलग अलग सिस्टम। देखो अलग अलग सिस्टम रहेगा, चाहे आप 10 लोगों अच्छा को दे अच्छा दो, अच्छा, एट ए टाइम 10 लोग भी काम कर सकते हो वही लॉगिन ठीक क्रेडेंशियल है से, ठीक है। ओके ओके। लेकिन देखिए मेरा मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल जिसको भी आप दे रहे हो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो। आप ट्रेनिंग ले लोगे, उनको बोलो आप कर दो करके, तो वही करेंगे जो अभी तक करके आए हैं। ठीक है समझ गया सर। ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगेगा, एंड ऑफ द मंथ जब भी पेरोल रन होगा ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत ये रहेगा, और आप फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे और मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और उसी में उसको चालू तो चले जाएगा, आपको करना ही है, बट बिलिंग के लिए आपको बहुत इशू होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अपडेट करनी है, अदरवाइज ये इशू क्रिएट श्योर होगा। श्योर सर। अभी के लिए हम लोग डेटा ले रहे हैं अटेंडेंस का, और जो हमारे पास सैलरी है मेरे पास वो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आपको लोकेशन से भी अटेंडेंस आप लेके रखो और पेरेंट आप बना के रखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है सिस्टम में कुछ इशू हो सकता है, और उसके चलते किसी एम्प्लॉय की सैलरी डिले नहीं होनी चाहिए। तो अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी आप करते रहो, बाकी हम लोग डिटेल्स आपको भेज ही देंगे। आज या कल में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा, आप उसके थ्रू नए कैंडिडेट को हायर कर सकते हो। कुछ डाउट है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, सभी के पास है मेरा नंबर।
मेरा नंबर है सभी के पास। रमेश बोल रहा हूँ मैं। सर है सबके पास है। है सर। हेलो। तो हाँ नंबर सर, सेव कर है नंबर है लीजिए, कुछ आपका। भी डाउट है। देखो फर्स्ट टाइम थोड़ा इशू होगा क्योंकि सिस्टम नया है, हेलो। फंक्शन थोड़े अलग है। बट एक दो आप करते हो ना तो उसके बाद आपको वो समझ में आएगा क्या करना है आपको। ठीक है, थोड़े अलग सीएमपी से थोड़ा अलग है, हटके थोड़ा ये है सिस्टम में थोड़ा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है, बट ठीक है, कर सकते हैं आप आराम से। उसको कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो। लेकिन आप इंश्योर करो कुछ भी गलत आईडी अपडेट मत करना। डाउट है आप कॉल कीजिए प्लीज। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ ये हाँ कब से सुप्रिया जी। प्रोसेस होगा? ये देखो कब से जनवरी से वैलिड हम होगा लोग कर सर? रहे हैं, जनवरी से हम लोग पेरोल रन कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको जो ऑनबोर्डिंग नया वाला आ रहा है ना, आप फिफ्थ से करना है उसको ऑनबोर्डिंग, क्योंकि अभी फिफ्थ चालू हो गया। बैक डेटेड हायरिंग होगी नहीं। जनवरी का हेलो। पेरोल आप भी बना के रखो आपको सेफर साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, सिस्टम में कोई इशू हो सकता है और उसके चलते एम्प्लॉय को सैलरी रियल टाइम पे नहीं मिलेगी। तो आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहो। हम लोग कर रहे हैं ना पेरोल, कि हम लोग करेंगे उसका 100%। कैसे करें? एक मिनट सर, अगर 1 तारीख को ज्वाइन कराना, 1 तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो 31 को ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते सर? एक को ही करना है, क्या रियल बोल रहे हो टाइम आप? में। हाँ, रियल टाइम, रियल टाइम। रियल टाइम सेम करते डेट पे करना है ना सर? हाँ आगे का कर सेम डेट पे सकते हैं। करना है ना? सेम डेट पे, हाँ सेम डेट पे करना है। ठीक है। देखो होगा क्या है ना, करंट सिस्टम में आपको बैकडेटेड हायरिंग करने के लिए दे रहे थे 1 मंथ की। ये सिस्टम में ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि आप कह रहे आज हैं बंदे ने ज्वाइन किया रात के तो 12 बजे से उसको सुबह 8-9 बजे तक कर सकते हैं। नहीं हाँ, नहीं, क्या आगे का कर सकते, पीछे का नहीं कर सकते। आगे कर सकते, पीछे वाला डेट का नहीं होगा, आगे वाला आप कर सकते हो, बट फ्यूचर डेट हायरिंग ले सकते हो मतलब ऐसे। 31 तारीख को 1 तारीख की ऑनबोर्डिंग कर सकता हूँ ना सर? ऐसे या मान लीजिए आज 31 जनवरी गया सर, मुझे 1 को बंदा ज्वाइन कराना है, तो 31 को मैं ऑनबोर्डिंग करके उसमें 1 फरवरी ज्वाइनिंग डेट बता सकता हूँ ना सर? 1 तारीख को एम्प्लॉय को ज्वाइन कर दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना सर? हो सकता है, ये हो सकता है। सर सुशील बोल रहा हूँ, एक चीज बताओ, अगर किसी लेकिन बंदे से लेकिन हैंडओवर टेक ओवर लेकिन रहेगा। लेकिन सुनिए, सिस्टम में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली है उसी दिन पे उसको करना है ऑनबोर्डिंग। एम्प्लॉय को जनरेट उसी उसके पहले नहीं करना है, उसके बाद ऑन में सेम करोगे डेट तो क्या स्क्रम होगा। आईडी क्रिएट करना है ना सर? हाँ ऑन सॉरी, सेम डेट स्क्रम आईडी क्रिएट करना है ना? सेम डे पे करना है। आप फ्यूचर का भी कर सकते हो, मतलब आज मैंने करके रखा वो इधर को ज्वाइन होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल भी फर्स्ट या सेकंड रहेगी। फर्स्ट, राइट। बट बैकडेटेड नहीं। वैलिडेटेड नहीं होगी। सर एक चीज, एंड सर सुशील बोल वन रहा हूँ। सेकंड, आप स्क्रम आईडी का एक बार बता सकते हो? लेकिन आप जब करते हो ना तो उसी दिन पे उसको ज्वाइन करना है, कोई भी डेट होता है जिस दिन उसका डेट ऑफ ज्वाइन आपके सिस्टम में डाला है। उसके पहले नहीं कर सकते, उसके पहले आप करते हो तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, होगा ही भी नहीं। और उसके बाद में करते हो, समझो आपने फर्स्ट डाला है या सेकंड डाला है और 5 तारीख को आप करते हो, तो जो जिस दिन वो काम पे आएगा उसको सैलरी वहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका अटेंडेंस वहां से लगेगा, पहले 4-5 दिन का मिलेगा नहीं उसको कुछ भी। तो आप ये भी इंश्योर करो कि आप जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइन डाल रहे हो उस दिन पे बंदा ज्वाइन करेगा। सर सुशील बोल रहा हूँ, अगर किसी बोलो लड़के से सुप्रिया। हैंडओवर टेक ओवर रहेगा कि एक सुपरवाइजर है, मेरे पास एक ही वैकेंसी है, और अगर उससे हैंडओवर टेक ओवर रहेगा तो दोनों तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा नहीं। तो फिर कैसे करेंगे सर, उसका हैंडओवर टेक ओवर कैसे लेगा लड़का? देखिए हम लोग इसलिए बोला आपको कि करंट के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम में एक्टिव एम्प्लॉय उनका नहीं सर, डेटा वो कर दिया, अपलोड किया। मेरा एक लड़का था सुपरवाइजर, वो 5 तारीख को सुशील छोड़ के जा रहा है, और मैंने कि उसका सुशील काम भी दूसरे लड़के को जो आएगा उसको सिखाना भी है। मैंने 1 तारीख सुशील से अगर उसकी ज्वाइनिंग सुशील दिखानी है तो। सुशील सुनिए, करंटली जो सिस्टम में एम्प्लॉय है ना उनका ही डेटा अपलोड हम्म। किया गया है। रिक्वायरमेंट जो एक्चुअली है ना वो बिजनेस पे हमको दे देंगे, लेकिन आप हमको मेल करो कि इसका और किसी और को हायर करना है और उस लोकेशन पे 2 सुपरवाइजर होने की अगर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो ही वो पोजीशन क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सर रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी बात नहीं समझे। मेरा जो लड़का था वो 5 तारीख को जाएगा, ठीक है, और जो मेरा नया लड़का आ रहा है मैं उसको 2 तारीख से ज्वाइन करा के 3 दिन उसका काम भी तो उसको सीखना पड़ेगा ना सर, उससे हैंडओवर भी तो लेना पड़ेगा।
उसके लिए पोजीशन होगी तभी वो अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना सर, बट हैंड ओवर प्रोसेस कैसे होगा सर? तो आदमी बुला के बात हैंड ओवर नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा सुशील, वो सिस्टम नहीं है आपकी जैसे पहले थी, ओपन थी, आप जितनी भी आईडी क्रिएट करने कर लो, वो नहीं है सिस्टम। क्योंकि सारा सिस्टम का ये इशू था, बहुत सारा गलत डेटा जा रहा था, इसलिए ऐसा ये टाइप का सिस्टम बनाया कि ये तो एक रिक्वायरमेंट है ना सर, ओकेशन की रिक्वायरमेंट है ये हम तो। लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम के साथ कि उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बट करंट सिचुएशन में हम आपको वो फैसिलिटीज नहीं दे सकते उसमें। और सर जो गार्ड होते हैं, रिलीवर गार्ड आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मतलब संडे के दिन जिसकी छुट्टी होती है उसकी जगह, तो जैसे मेरे गार्ड की कोई रिलीवर चार्जेस नहीं आता तो उसका तो हो जाएगा लेबर का लिविंग चार्जेस रिलेवन रहता है सर संडे के दिन, क्योंकि हमारा गार्ड है वो 7 दिन काम करता है, ठीक है। तो वो एक दिन जिस दिन छुट्टी करेगा उसमें उसका रिलीवर आएगा कोई, और वो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही आए। एडो कॉल तो अलग से जाएगा ठीक है। ये सिस्टम पे अभी तो वो है नहीं, हम लोग बता देंगे आपको कैसे करना है केस में। हाँ हाँ, ये 2-3 वो डिस्कशन चल रहा है बिजनेस टीम के साथ में, ठीक है। अपन बट जब भी अभी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलने के बाद आप एक बार चेक करो कि जितने सारे कैंडिडेट आपके एम्प्लॉई है अभी करंट एक्टिव, वो सारे वो सिस्टम में आए कि नहीं। अगर वो नहीं आए तो इमीडिएटली मुझे हाईलाइट करना है कि ये एम्प्लॉय का डिटेल सिस्टम में नहीं है करके, तो हम उसको ऐड कर देंगे। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं बताओगे या फिर मेल नहीं भेजोगे कि ये इसका नाम नहीं है, तो उसी लोगों का सैलरी प्रोसेस होगा ना जो सिस्टम में अभी लाइव है। सीएमपीएस से हम लोग कुछ भी डेटा नहीं ले रहे हैं, हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो बेटर पे जो भी नया सॉफ्टवेयर है ना उससे ले रहे हैं। तो आप चेक करो स्टार्टिंग में जैसे भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलता है कि सारे बंदे सिस्टम में है कि नहीं, और उसका डेजिग्नेशन प्रॉपर अपडेट है कि नहीं। डेजिग्नेशन मींस रोल। मैंने बोला कि पे आउट करने का अटेंडेंस फ्रॉम जनवरी में। ठीक है, और कोई डाउट है? फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी का अटेंडेंस आप रिस्पेक्टिव जो लोकेशन मैनेजर है उनसे ले लो और पे रजिस्टर बना के रखिए। एम्प्लॉय को पे आउट नहीं करना है। एम्प्लॉय को पे आउट करने के लिए हमको बोल देंगे कि आपको पे आउट करो तब करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस मंथ का पेरोल हम लोग सिस्टम नया है, सिस्टम का इशू कुछ भी हो सकता है और एम्प्लॉय की सैलरी होल्ड नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप बना के रख दो। हम लोग आपको इंटीमेशन दे देंगे कब सैलरी रिलीज करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ सुशील सर, कुछ डाउट है? नहीं सर, जो अभी जनवरी मंथ का पेरोल के लिए बताया वो प्लीज नोट कीजिए। और सेकंड की एक जो हम लोग सिस्टम दिखा रहे हैं अभी के लिए, ये सिस्टम पे सिर्फ डीसी और नेटवर्क के ही एम्प्लॉई है। एफटीटीएक्स में जितने भी सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं उनको अभी तक हम लोग सिस्टम में माइग्रेट नहीं किया है, तो एफटीटीएक्स का सैलरी तो आपको रेगुलर जैसे करते हो वैसे ही करना है। ठीक है सर, ठीक है। एफटीटीएक्स का नेटवर्क का जो है यानी 4G का है और डीसी वाला हम लोग आपको बता देंगे कब सैलरी करना है, बट आप पे रजिस्टर बना के रखिए इस मंथ का, जनवरी का, ठीक है? एफटीटीएस का जो भी है ना सर, एफटीटीएस का जैसे मतलब रेगुलरली हम करते हैं वैसे ही करना है ना? वैसे ही करना है, क्योंकि एफटीटीएस हम लोग यह सिस्टम पे लिया नहीं है अभी तक, अभी डीसी और नेटवर्क के लिए ही लिया है। तो उनका सैलरी आप पे रजिस्टर बना के होल्ड कर दो, हम लोग बता देंगे कब करना है करके आपको, तब सैलरी रिलीज कर देना। ओके ठीक है, ओके सर। ओके। और कुछ है? सर किसका सैलरी होल्ड करना है? सॉरी, डीसी एम्प्लॉय का और नेटवर्क वेयरहाउस का होल्ड करने मतलब आपको पे रजिस्टर बनाना है, अटेंडेंस लेना है रिस्पेक्टिव लोकेशन मैनेजर से, पे रजिस्टर भी बनाना है, लेकिन सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं डालनी है, उसको आप होल्ड करना है। नेटवर्क वेयरहाउस में किसी भी लोकेशन नहीं करनी है? नहीं, और डीसी में भी नहीं करनी है। एफटीटीएस की आप कर सकते हो, एफटीटीएस का होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, क्योंकि ये लोगों को हम लोगों ने मर्ज नहीं किया है यहाँ पे अभी तक, तो कोई एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर,
जिस दिन हो जाएगा ना ये, इनको भी हम लोग सिस्टम पे लेके आएंगे तो बोल देंगे कि आपको मतलब नहीं ये करना बेटर प्लेस चाहिए। इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट मंथ से क्या, मार्च फरवरी या मार्च से हम लोग इम्प्लीमेंट होगा? हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि बेटर प्लेस में हम लोग सारा डेटा अपलोड किया है, जो करंट एक्टिव एम्प्लॉय है उनका हम लोग पेरोल भी रन करने की सोच रहे हैं कि पेरोल रन करें हम लोग। पंचिंग दिख रहा है, उसका पंचिंग दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर, अंडरस्टूड। तो इस मंथ में हम लोग पेरोल रन कर रहे हैं, लेकिन ये अरे बट उसका सिस्टम नया है, तो हो सकता है ना सिस्टम में कुछ भी इशू हो सकता है, और ये फर्स्ट है, इसलिए हम लोग बैकअप के लिए बोल रहे हैं आपको कि आप अपना पेशीट बना के रखिए इस मंथ का। सैलरी कब रिलीज करने हमको बता देंगे। अगर ये 100% एक्यूरेसी आती है पेरोल रन करने में हमें, तो हम बता देंगे कि हमने जो डाउनलोड किया उसके बेसिस पे आप सैलरी रिलीज कर दो। ठीक है। ओके सर। सिस्टम का नॉलेज ठीक है, सबको आ गया कि समझ में आया कैसे करना है करके। इसकी पीपीटी बनाएंगे, तो हम लोग इसकी पीपीटी बना दे भेज देंगे आपको। जब भी अभी मेल कम्युनिकेशन डाल देंगे कि क्या लोकेशन रहेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल भी आपको चला जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग एक कॉमन ग्रुप पे नहीं भेज रहे, वो इंडिविजुअल चला जाएगा जिस मेल आईडी पे जिसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है। बट बाकी डेटा कैसे अपलोड करना है वो हम आपको मेल पे भेज रहे हैं, और साथ में हम आपको पीपीटी भेज रहे हैं कि कैसे आपको क्रिएट करना है आईडी। तो वो गो थ्रू कीजिएगा, कुछ डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे तो नंबर है आपके पास में, ये प्रणय भी है, और आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर।